Hi, welcome back to BLFT portal. My name is Hardik Dave and I'm making this video after a very long time. But now this one is important. Startup India Seed Fund Scheme. You must have heard about it. Prime Minister Narendra Modi announced this scheme during the Prarambh event, which was a celebration of 5 years of Startup India scheme. And after that, the official notification and the detailed guidelines have been announced very recently. So in this video, we are talking about all the details that you need to understand about the Startup India Seed Fund scheme. Who all is eligible, what would be the process for applying to it, how much amount you can get and what are the conditions attached to it, and whether it is a really good scheme or not. All the aspects we are discussing in this video. Let's start. So first thing that we are starting with is introduction. Why do we need such a kind of scheme, Startup India Seed Fund Scheme? Why do the government need to invest in seed funding for startups? So for this, what we really need to understand is the startup funding scenario around us. I'll be explaining you through this diagram. That first understand that whenever a startup is starting up, the first step would be that you would be having an idea. So let me draw on my screen. So the first thing that is always there is an idea. So you have an idea. This idea needs to be validated. So we call this concept called proof of concept, POC. Then this POC concept is, if successful, if it gives a green signal, then we would go to the next step, which is product development. Once the product is developed, we would be having product trials, and after the product trial is successful, we would be launching the product, commercialization, or I can say commercial launch. And once this is done, then we would start getting some initial traction, and only after that, usually the investors invest in our startups, because by this time only your startup become a fundable I can say a fundable investment, a fundable startup for the investors, and this is the most time where most of the investors would come into pictures. So now the most difficult situation arises, that how to reach to that stage, because in most of the startup product development involves cost, huge amount of cost. So this was happening all across. सारी जितने भी स्टार्टअप्स थे उनको प्रॉब्लम ये आ रहा था कि they do not have funds to build the product, to do this POC and all. So government decided that okay, let us start investing in the early stage startup at the ideation level itself, so that they can reach to that stage जहाँ से वो investors उसमें interest लेंगे. So that is the whole idea behind coming up with this scheme. Now, so as you can see on the screen, that this is a scheme which has been launched by the central government, or I can say the Delhi government or the Modi government, right? What is the name of the scheme? It is Startup India Seed Fund Scheme, and it would provide financial assistance to startups for proof of concept, right? As in, if you are having an idea on which you need to work on, so they would provide you funding to validate that idea through POC exercise. Then once the prototype is done, once the POC is done, you want to build a prototype, or I can say the MVP for the startup. For that you can get funding. After that, product trial and market entry and commercialization. The only concept I can say, the government would provide you funding to be able to reach to that stage जहाँ से आपको investment मिल सकता है. Now this scheme has a corpus of 945 crore rupees, which means कि government ने जब ये scheme announce किया उसमें they contributed 945 crore rupees, and now this scheme does not provide you the funding directly to your bank account, as in the government is not coming into picture. What they did, that they appointed incubators as a middleman. What does that mean? That usually the first way could have been that this is the government, so this is the government, you can directly apply as a startup, but this would have been a long process, because the government authorities, or I can say Startup India portal, would not be it would not be easy for them to evaluate so many applications that they would be receiving on ongoing basis. So what they did, that the government would be selecting incubators, mostly the incubators who are already having a successful track record of good incubating good startups, and all the startups can make application to incubators, right? So on behalf of the government, these incubation programs would be evaluating the application, and if successful, you would be getting the funding through the incubation program. So that is the basic idea. This takes care of this second point, that 945 crore rupees to be disbursed through incubators, and this is, I can say, this scheme would be applicable from 2021, as in it scheme would be starting from 2021, and it would be continuing operation in up to 2025.
नाउ दिस स्कीम इज सेक्टर एग्नोस्टिक, विच मीन्स कि आप किसी भी सेक्टर में कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो तो गवर्नमेंट वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट। बट द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो नोटिफाइड अ फ्यू priority sectors जिसमें government actively wants to give seed funding. I'll talk about what are those priority sectors in the upcoming time, right? And the last thing that we need to understand at the introduction portion is कि this application is to be made through the Startup India portal. So यानी कि आप Startup India portal पे जाओ, वहाँ पे application करो, choose the incubation center to which you want to apply. The incubation center would be evaluating your application and if it is successful they would be giving you funding. Government directly आपके साथ यहाँ पे जो है interaction नहीं करेगा. So moving to the next important part, what is the eligibility criteria? What kind of startups are eligible? So first thing that we need to understand कि to be eligible to apply under this scheme, you need to be recognized by DPT. What does that mean? इस पे मैंने DPIIT recognition क्या होता है, there is a separate video that I have made, उसका लिंक आपको ऊपर मिलेगा, you can watch from there. Moving fast कि DPIIT recognition आपके पास होना चाहिए and you should be not more than 2 year older startup, यानी कि आपको incorporation से लेके अब तक 2 साल से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, you are a new startup but recognized by DPIIT, तो आप इसके अंडर एप्लीकेशन कर सकते हो. This is the first condition. Simply saying कि DPIIT recognition आपको कब मिलेगा? If you are into innovative and scalable business model, या फिर you are giving employment, your idea has potential to give employment on a very large scale or to create wealth on a very large scale, then you become eligible for it. So to be able to apply under this scheme, you would need to first take a recognition from DPIIT and also at the same time आप 2 साल से ज़्यादा older startup नहीं होने चाहिए. Second thing, that startup must have, the second condition I am talking about, startup must have a product or service which is a market fit. Market fit का मतलब यहाँ पे ये कि जिस मार्केट में आप, जिस इंडस्ट्री में आप जो अपना सॉल्यूशन लेके आना चाहते हो, उस इंडस्ट्री को एक्चुअली आपके सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है. योर सॉल्यूशन वुड बी परफेक्ट फॉर दैट मार्केट, योर सॉल्यूशन वुड बी फिट फॉर द मार्केट. सो वो कंडीशन यहाँ पे है. सेकंड, वाइबल कमर्शलाइजेशन, कि जो सॉल्यूशन आप बिल्ड करना चाहते हो उसको आप कमर्शलाइज कर सकते हो, उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो. एंड एट द सेम टाइम देयर शुड बी एन स्कोप ऑफ स्केलिंग. छोटे मोटे स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं देना चाहती गवर्नमेंट. ऐसे स्टार्टअप जो कि एक्चुअली पोटेंशियल रखते हैं टू बी वेरी बिग, उनको यहाँ पे सीड फंडिंग दिया जाएगा. सो दिस वाज द सेकंड कंडीशन. फर्स्ट वन वाज रिकॉग्निशन फ्रॉम DPIIT. सेकंड वन इज to have a product or market which is a product or service which is market fit, viable commercialization and scope of scaling. Number 3, your solution should have technology involved in it. आपका जो स्टार्टअप का सॉल्यूशन है, जो बिजनेस आप करना चाहते हो, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल होना जरूरी है. टेक्नोलॉजी could either be your core product, right? So using technology is necessary. It could be your core product or service, or it could be a part of your business model or distribution model or methodology to solve the problem that you are being targeting. कहीं पे भी बिजनेस में कहीं ना कहीं पे आई कैन से इट हैज़ टू बी टेक्नोलॉजी बेस्ड. यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी सपोर्टेड स्टार्टअप, बट टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ही यहाँ पे यू विल बिकम एलिजिबल फॉर इट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज प्रायोरिटी सेक्टर्स. What does that mean? मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला कि दिस स्कीम इज सेक्टर एग्नोस्टिक, यानी कि कोई भी अगर आप सेक्टर में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो. बट देयर आर फ्यू सेक्टर्स विच द गवर्नमेंट वांट्स टू एक्टिवली सपोर्ट, और उन्होंने वैसा दे दिया है कि इन सेक्टर्स की एक लिस्ट दे दी. सिंपली अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना, आई कैन से ऐसे इंडस्ट्रीज विच आर सोशली और इकोनॉमिकली और नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो सारे सेक्टर, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ये सारे सेक्टर जो है जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि अच्छे स्टार्टअप्स आए, उनको सपोर्ट करेगी. इट डज नॉट मीन बाकी सेक्टर्स में सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट इनको प्रायोरिटाइज करेगी गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग कि उनको फंडिंग देना है आपको या नहीं देना है. सो अगर लिस्ट अगर आपको देखना है, यहाँ पे लिस्ट है, देखिए. सोशल इम्पैक्ट इज फर्स्ट, फिर वेस्ट मैनेजमेंट, फिर वाटर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी मोबिलिटी, डिफेंस, स्पेस, रेलवे, ऑयल, गैस एंड टेक्सटाइल. ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें आपको फंडिंग जो है गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करेगी. सो नेक्स्ट 2 और एडिशनल क्राइटेरियाज है यहाँ पे, वो है कि आपको गवर्नमेंट की किसी और स्कीम के अंडर 10 लाख रुपए से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, राइट. सो दिस शुड बी इन अ वे आई कैन से फर्स्ट टाइम फंडिंग सपोर्ट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो द क्राइटेरिया इज दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड मोर देन 10 lakhs ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट अंडर एनी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम. बट इसमें अगर आप कोई कॉम्पिटिशन जीते हो, उसका प्राइज मनी हो गया, या फिर सब्सिडाइज वर्किंग स्पेस, अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंक्यूबेशन सेंटर में कहीं पे आपको वर्किंग स्पेस मिल रहा है या एक्सेस टू सम फैसिलिटीज मिल रहा है,
या फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट जैसे केरला गवर्नमेंट है और राजस्थान गवर्नमेंट है, दे प्रोवाइड फाउंडर्स अलाउंस, मंथली अलाउंस 10,000 रुपीज मंथली आपको मिलता है। सो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। सीड फंडिंग जो है आपको किसी और गवर्नमेंट स्कीम में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें आपको अगर नहीं मिली होनी चाहिए, अगर मिली है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। एंड लास्ट कंडीशन that shareholding of Indian promoter has to be minimum 51%. So government wants to support Indian startups, right? So आपका support जो आपका जो equity है that has to be minimum of 51%, then only you are eligible. So I can say, if I have to summarize what are the conditions, eligibility criteria under this scheme, to simplify, number one, that you need to be recognized startup. Second condition is that you need to have a product or service which is market fit, commercialization हो सकता है और scalable है, right? And number three is you must be using technology. And फिर number four, number five, simple sector priority होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर में अगर if you are falling then it is good। और फिर आप किसी और दूसरी स्कीम में आपको बेनिफिट नहीं मिला है और इंडियन प्रमोटर्स हो और आपका मिनिमम शेयर होल्डिंग जो है वो 51% है, तो ही आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। और इस स्कीम के अंडर आपको एक ही बार बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि सीड फंडिंग आप जितनी बार आपको फंडिंग की जरूरत पड़ी उतनी बार आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, एक ही बार आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कि जैसे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो इंक्यूबेटर्स के थ्रू आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगा, तो कि व्हाट काइंड ऑफ इंक्यूबेटर्स वुड बी एलिजिबल फॉर इट, तो उसके क्राइटेरियाज हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। समराइज आप ये समझ लीजिए, ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर जिनका ऑलरेडी सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है वो जो है इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाएगा और वो डिसाइड करेंगे, तो जो भी इंक्यूबेशन सेंटर सेलेक्ट होता है उनको 5 करोड़ रुपीज एज अ ग्रांट दिया जाएगा, विच दे आर सपोज टू डिसबर्स टू अदर स्टार्टअप्स, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, कि स्टार्टअप्स कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है, बट व्हाट वुड बी द प्रोसेस कि कौन से स्टार्टअप को फंडिंग देना है, कौन से स्टार्टअप्स को नहीं देना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बोला, स्कीम में ये लिखा गया है कि हर एक इंक्यूबेशन सेंटर जो कि सेलेक्ट होता है, दे वुड नीड टू मेक अ कमिटी कॉल्ड ISMC, जिसका मतलब है इंक्यूबेटर सीड मैनेजमेंट कमिटी। सो ISMC में सारे, एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर का खुद का पर्सन होगा, कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे, VC फर्म से लोग होंगे। सो एक एक्सपर्ट कमिटी होगी एंड दे वुड बी इवैल्यूएटिंग ऑल द एप्लीकेशंस दैट द इंक्यूबेशन सेंटर रिसीव अंडर दिस स्कीम। नाउ ये स्टार्टअप सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, इट वुड बी एन ओपन ट्रांसपेरेंट फेयर प्रोसेस, यानी कि आप स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे एप्लीकेशन करोगे, वहां पे यू वुड हैव एन ऑप्शन टू चूज 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स, राइट। अगर मान लीजिए जैसे आप एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप्स है और मुंबई में यहाँ पे 3 इंक्यूबेशन सेंटर है जिनको गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंडर सेलेक्ट किया है, आप चाहते हो तीनों को अप्लाई करना, आप कर सकते हो। अब तीनों में से अगर तीनों ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो क्या होगा, तो आप फिर से नेक्स्ट टाइम वापस एप्लीकेशन कर सकते हो। मान लीजिए अगर फर्स्ट, यू कैन गिव प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग इंक्यूबेशन सेंटर। सो मान लीजिए फर्स्ट जो इंक्यूबेशन सेंटर था उन्होंने रिजेक्ट कर दी, सेकंड वाले ने अप्रूव कर दी और थर्ड वाले ने भी अप्रूव कर दी, तो ऑफकोर्स जो सेकंड वाला जो हाई ऑन प्रायोरिटी इंक्यूबेशन सेंटर होगा वो आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगा। सो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन करना है, वहां पे आपको कंटिन्यूसली जो है आई कैन से स्टेटस दिखेगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। एट अ टाइम आप 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स को एप्लीकेशन कर सकते हो और तीनों की तीनों जो है अगर रिजेक्ट हो जाती है तो भी आप फिर से अप्लाई कर सकते हो जब आप थोड़ा प्रोग्रेस कर चुके हो। व्हाट वुड बी द क्राइटेरियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है वो आपको जज करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को इवेल्यूएट करेंगे। इन द वे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया वो ऑलरेडी इसमें यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा कि पॉइंट नंबर 1 कि वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, इज देयर अ नीड फॉर इट, यानी कि जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो कौन से मार्केट से रिलेटेड है, उस मार्केट की साइज क्या है, जो आप सॉल्यूशन है वो क्या यूनिक सॉल्यूशन है, क्या कोई मार्केट गैप फुलफिल करता है, क्या डज इट सॉल्व रियली अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी कि सॉल्यूशन जो है उसकी क्या वास्तव में जरूरत है कि नहीं, ये फर्स्ट क्राइटेरिया होगा। सेकंड है फिजिबिलिटी, कि जो टेक्नोलॉजी आप ट्राई कर रहे हो बिल्ड करने का, क्या वो फिजिबल है, वो क्या बिल्ड हो जाएगा। इज देयर एनी टेक्नोलॉजिकल चैलेंज और लीगल चैलेंज जिसकी वजह से शायद वो सॉल्यूशन हो ही ना पाए कभी।
या फिर पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा जो आपका सॉल्यूशन है उसकी वजह से, जो आपके कस्टमर्स होंगे, या फिर नेशनल कंट्रीब्यूशन आपका क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट यहाँ पे चेक करेगी। क्या आपका आइडिया नया है, नोवेल्टी चेक करेगा। उसके बाद में आपकी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, डू यू हैव बोथ द बिजनेस एज वेल एज टेक्निकल एक्यूपमेंट, एक्सपर्टाइज इन योर टीम। क्या जो सॉल्यूशन आप बनाना चाहते हो उसको एग्जीक्यूट करने की स्ट्रेंथ आपके पास है कि नहीं है। और आपका फंड यूटिलाइजेशन प्लान क्या है, कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर आपको 20 लाख रुपए दी तो 20 लाख रुपए का करोगे क्या आप, वो आपको यूटिलाइजेशन प्लान बताना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ और जो है एडिशनल पैरामीटर जो इंक्यूबेशन सेंटर डिसाइड कर सकता है। सो इन अ वे आई कैन से कि सॉल्यूशन की नीड क्या है और मार्केट कितना बड़ा है, स्केलेबल है कि नहीं, वो सारी चीजें जो है इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे जो है डिसाइड करेगा। प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यू कैन अप्लाई थ्रू स्टार्टअप इंडिया पोर्टल टू मैक्सिमम 3 स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स। तीनों आपके एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, और उसके बाद में जो है ISMC जो था इंक्यूबेटर्स सीड मैनेजमेंट कमेटी, वो आपके एप्लीकेशन को इवेल्युएट करेगा। 45 डेज के अंदर जो है उनको रिस्पॉन्स आपको देना है कि वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो भी आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार रिजेक्ट हो गए तो आप फिर से अप्लाई नहीं कर पाओगे। नाउ कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इफ यू आर सेलेक्टेड देन व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू वुड बी गेटिंग। सो 2 तरह के बेनिफिट है इस स्कीम में। आई कैन से कि स्टार्टअप इंडिया सीड इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है उसमें 2 बेनिफिट्स है, ग्रांट्स और सेकंड इज डेट फंडिंग। तो देखिए फर्स्ट जो है अप टू 20 लाख रुपीज ऑफ ग्रांट, यानी ग्रांट का मतलब ये कि ना तो वो पैसा आपको गवर्नमेंट को वापस करना है, ना ही उसके बदले में गवर्नमेंट आपसे आपकी कंपनी का इक्विटी लेगा, राइट। इट इज वन काइंड ऑफ आई कैन से ग्रांट और गिफ्ट। आप समझ लीजिए कि आप अच्छा कुछ कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको दे रहे पैसे की चलो आप इस पे वर्क कर लीजिए। सो सीड फंड बाय वे ऑफ ग्रांट अप टू ₹20 lakhs। और वो किस लिए हो सकता है, दैट वुड बी फॉर वैलिडेशन ऑफ योर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर आप प्रोटोटाइप डेवलप करना चाहते हो, या फिर आप प्रोडक्ट का ट्रायल करना चाहते हो। और इन सारे पर्पस के लिए जो है आप ग्रांट आप अप टू 20 लाख रुपीस का मिल सकता है। ये 20 लाख रुपए के आपको लमसम डे 1 पे ही दे देंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, आंसर इज नो। ये आपको माइलस्टोन बेसिस पे जितनी जितनी आपको जब जब जरूरत है, प्रोग्रेस देखेगी इंक्यूबेशन सेंटर, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसबर्स किया जाएगा। उसके बाद में डेट फंडिंग की अप टू 50 लाख रुपीस ऑफ एडिशनल आई कैन से फंडिंग द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एज अ डेट, यानी कि ये अमाउंट आपको वापस करना है और गवर्नमेंट चाहे तो उसको इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकती है। सो ये जो होगा ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे कि इनिशियली ये डेट होगा, बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपका स्टार्टअप अच्छा कर रहा है, दे माइट कन्वर्ट इट टू इक्विटी ऑल्सो। सो ये जो है 50 लाख रुपीज तक का मिल सकता है, और ये इन्वेस्टमेंट होगा मार्केट में एंट्री करने के लिए, यानी कि जब आपका प्रोडक्ट एक बार डेवलप हो चुका है। देखिए 20 लाख रुपए तो टू बी एबल टू रीच टू दैट स्टेज जहां पे आपका प्रोडक्ट रेडी हो, लेकिन उसके बाद जब आपको कमर्शियलाइजेशन करना है उसके लिए आपको अप टू 50 लाख रुपीज एज डेट फंडिंग आपको मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी पैसा स्कीम में मिलता है दैट हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर द स्टेटेड पर्पस, राइट, कि प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं कि 20 लाख रुपए आपको मिले गवर्नमेंट की तरफ से और उससे आपने एक अच्छा सा ऑफिस खरीद लिया, आपने CEOs के लिए गाड़ी खरीद ली, वो सब अलाउड नहीं है। इफ यू आर टेकिंग फंडिंग फॉर बिल्डिंग द प्रोडक्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी ऑन बिल्डिंग द प्रोडक्ट ओनली। सो ये हमने एक समरी इसका पूरा समझा है। देखिए क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले की एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है वो आपको ध्यान रखना है। सो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे आप अपने स्टार्टअप्स को इवेल्युएट करिए कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। सेकंड चीज यहाँ पे जो है कि अगर है तो फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बताया। लेकिन इंपॉर्टेंट टेक अवे जो है इस वीडियो से कि देखिए स्कीम आज की डेट में फेब में या जैन में अभी एप्लीकेबल नहीं है। दिस स्कीम इज expected to get implemented from 1st of April 2021। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नंबर 2, इट इज मोस्ट लाइकली, नो डाउट कि स्कीम में ऐसा लिखा गया कि दिस स्कीम इज सेक्टर एग्नोस्टिक, यानी कि आप किसी भी सेक्टर में हो सकते हो, लेकिन इट इज मोस्ट लाइकली कि गवर्नमेंट वुड ओनली बी फंडिंग स्टार्टअप्स विच आर इन प्रायोरिटी सेक्टर्स जिसमें कंपटीशन कम है, जो एकदम नए सेक्टर्स है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती है, शायद एग्रीकल्चर जैसे रिलेटेड हो, एनर्जी रिलेटेड, जहाँ पे गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस, उसी में फंडिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ऑल्सो जो बाकी सेक्टर्स है, जैसे मान लीजिए इफ यू आर बिल्डिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गेमिंग सेक्टर में, एंटरटेनमेंट सेक्टर में, उन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना काफी लीस्ट लाइकली हो सकता है। ओनली द स्टार्टअप्स विच आर इकोनॉमिकली और सोशली और दे आर ऑफ सम नेशनल इंपॉर्टेंस, उन्हीं को फंडिंग मिलने के चांसेस ज्यादा है। नंबर 3, जब गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करी तो सबसे मेन चीज देखेगी कि एंटरप्रेन्योर्स है कौन, हु आर द फाउंडर्स, हु आर देयर स्ट्रेंथ।
सो वैसे में इट माइट बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट के जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे दे वुड बी फंडिंग मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं, who are technically very sound, because in a way they also have to give their performance report, right, कि उन्होंने जहाँ पे पैसे गवर्नमेंट के पैसे जो आगे डिस्बर्स किए थे उसका आउटकम क्या रहा। तो वैसे में रिस्क इंक्यूबेशन सेंटर अभी भी नहीं लेंगे। तो शायद जो इंटेंडेड बेनिफिट है कि जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हो, एकदम नया जैसे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स हो, उनको फंडिंग मिले ये सब बिल्ड करने के लिए, वो शायद मुश्किल है। इंक्यूबेशन सेंटर्स की रिस्क एपेटाइट नहीं होती है, ना ही गवर्नमेंट रिस्क लेना चाहेगा यहाँ पे। और लास्ट की सबसे मेन पार्ट कि गवर्नमेंट की तरफ से जब पैसा इंक्यूबेशन सेंटर्स को जाएगा तो इंक्यूबेशन सेंटर्स आगे पैसा देंगे। वी नो व्हाट हैज हैपेंड टू द फंड ऑफ 10,000 करोड़ रुपीस का जो गवर्नमेंट ने बोला था कि वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से कितना पैसा डिस्बर्स हुआ है, नहीं हुआ है, वी ऑल नो द रिपोर्ट्स, उसके बारे में बात नहीं करते। बट ओवरऑल इफ आई हैव टू गिव अ रिव्यू, इंटेंशन अच्छा है, स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स को जेन्युइनली नीड है सीड फंड्स की, बट ये स्कीम के थ्रू कितना बेनिफिट मिलेगा दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये चीजें समझी होगी। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है और इफ यू वांट टू मेक एन एप्लीकेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द ईमेल आईडी विच इज अवेलेबल in the YouTube channel link. Thank you for watching. Goodbye.